So once again, students, very good morning. So now we will see the vector addition. Already we have seen the resolution of the components, resolving any vector into its rectangular components, and with the help of trigonometry also we have seen. And the same resolution we have extended to a three dimension, and in that we have proved that this A is equal to ax plus ay plus az. I am with the due regards, I am telling that this is a cap, j cap, and k cap. But in a flow, I may sometimes say this is I, j, and k. But while writing also, you put a cap over it, because you need not to speak, but you have to write. So a cap, j cap और k cap लिखें तो ज़्यादा अच्छा है. सही. तो अभी ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग ये देखते हैं, इज ऑफन टेडियस एंड लेस एक्यूरेट होती है, तो हम इसीलिए ये आपको डिराइव करा दिए हैं. अब ए की जगह पर दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए, तो दो वेक्टर्स को डेफिनेटली एक्स वाई प्लेन में है वो, तो यू कैन राइट इट इन दिस वे. एंड अगर आर इनका सम है तो यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. So since vector obey commutative law and associative law both we have proved it, तो हम इनको थोड़ा सा ax के साथ bx भी लिख सकते हैं, है ना. So you can write in this way also, लिख सकते हैं कि नहीं, because they obey commutative law. So ax plus ay is equal to ax plus bx भी होगा, ay plus by. So this jj component we can write together, and this I component we can write together, and this xx component we can write together, and this the I cap and j cap we can take outside. So this we can do because this vectors obey the commutative law also and associative law also. इसलिए हम इसको वेक्टर एडिशन हम 2D में कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट. तो ये हम लोग लिख सकते हैं. और दिस ax plus bx जो है ये मैग्नीट्यूड्स, दोज मैग्नीट्यूड्स कैन बी रिटर्न एज द rx ऑल्सो, है ना. तो अगर ये r हमारा रिजल्टेंट है तो दैट कैन बी रिटर्न एज rx I plus ry j. j means j cap, I means I cap over here. Okay, so this rx here is equal to ax plus bx and ry is equal to ay plus by. तो अगर a और b दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो we can write in this way also. Each component of the resultant vector r is the sum of the corresponding components of a and b. This can be asked in MCQ form also, है ना. ये कैसे होता है, तो you can write in this way. Yes, definitely the resultant vector अगर हमारा a है, then the each component of that resultant vector is equal to the sum of the corresponding components of a and b. Corresponding components means x component दोनों के जोड़ देंगे ax और bx, so we will get the x component of r, and that is rx. And if we add the yy component of a and b, that is ay and by, then we can get the ry, that is the y component of the resultant vector. Understood? So this way यही बात हम 3D के लिए लागू कर सकते हैं. I will not go in deep of that. The same thing you can rightly write for that also. ये हमारा 3D के लिए हो गया. So do you require to me to explain it? I think you can understand very well. सर ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना? नहीं, अभी क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट आया नहीं है. ये तो सम और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, सम और सब्ट्रैक्शन, सम वेक्टर एडिशन. अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स तो आया ही नहीं है. हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, बट किसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ा? रियल नंबर को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो पढ़ा है. बट नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वन वेक्टर बाय another vector, that multiplication can be done in two ways. That is dot product as well as cross product. That means scalar product and vector product. वो तो अभी आया नहीं है. अभी तो दिल्ली दूर है उसके लिए, है ना बेटा. तो अभी तो हम केवल एडिशन पढ़ रहे हैं. अभी प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ बताइए किसका प्रोडक्ट निकला है. ये तो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है हमें, है ना. अभी ए और बी दोनों को हम ये दिस और ए और बी ये जो है वेक्टर्स, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी, दैट कैन बी डन इन टू वेज. वेक्टर इनका प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी तो हम बोलेंगे उसको स्केलर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट
दूसरे तरह से किया जाता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि आपने बात पूछ ली तो इसलिए मैंने बता दिया इतना। अंडरस्टूड बेटा? वो आगे Yes, आएगा। sir. ओके, अभी ये केवल वेक्टर एडिशन चल रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन हुआ था लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी का, रियल नंबर का हमारे वेक्टर के साथ हुआ था, तो वो फिर उतने टाइम्स हो गए, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ गया। हमने पढ़ा था ना, लेमड़ा ए म्यू बी, दैट वाज अ प्रोडक्ट, बट दैट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद अ रियल नंबर, है ना। चलिए, तो ये हमारा अभी वही चल रहा है। इसमें बताइए ये 3D में आपको ये हमने उसी को एक्सटेंड कर दिया, नथिंग एल्स, है ना, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो ये हमारा, so this method can be extended to addition and subtraction of any numbers। हम लोग ये a और b फॉर्म में अगर ले लें तो इस फॉर्म में भी ऐसे ही c बन जाएगा। इसको हम कितना भी कर सकते हैं, 3 हो गए तो हम 2 को ऐड करना और तीसरे को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, ax plus bx minus cx हो जाएगा। ये देखिए, the same thing we can extend to any times, है ना। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो ये अगर t वेक्टर हुआ, इन दो तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट जो है, 2 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं उसको। इट इज शोन दिस वे, है ना। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, अभी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट शायद हम आज पढ़ा भी नहीं पाएंगे, दैट विल in another session, but today now we will see the analytical treatment of this triangular law of vector addition and parallelogram law of addition। उसकी सहायता से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो magnitude and direction of that resultant vector a and b we can find out in terms of angle theta भी निकाल सकते हैं। तो वो हम निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्चुअल के हिसाब से भी और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी। तो हेडिंग इसका अलग भी आप डाल सकते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द triangular law of vector addition, and through which we will find out the magnitude and direction of resultant of two vectors a and b। a और b दो वेक्टर्स हैं, उनके हम मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच का एंगल हम निकाल पाते हैं। तो उसकी मेथड का नाम है बच्चों, क्या है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकली हम ट्रायंगुलर लॉ को लेंगे तो उसकी सहायता से हम ये निकाल पाएंगे। तो कई बार इसको एनालिटिकल व्यू ऑफ द एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही निकालेंगे बाय टेकिंग दिस a and b ऑन दिस। या पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। सो आइदर यू कैन यूज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम, दोनों एक ही हैं। मैंने बताया ना, दोनों ट्रायंगुलर लॉ से ही तो हमने पैरेललोग्राम लॉ निकाला है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया, और इसी को हम अगर कंप्लीट करते हैं तो वी कैन मेक इट पैरेललोग्राम आल्सो। तो दोनों की तरह लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, लेकिन हम अभी ट्रायंगल पर ही फोकस करेंगे। सो लेट अस टेक वन ट्रायंगल, दिस OPR ट्रायंगल लिया, और अगर पैरेललोग्राम के हिसाब से देखते हैं हम लोग, तो दोनों से हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, कोई इशू नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक ए वेक्टर लिया अलोंग OP और ये बी वेक्टर ले लिया अलोंग OQ। अगर हम इसको दो साइड्स ले लेते हैं इस पैरेललोग्राम की, तो ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया। एंड इफ यू मेक अ इक्वल वेक्टर फ्रॉम हियर, यहाँ पर एक इक्वल वेक्टर बना लिया तो ये भी बी हो जाएगा, राइट। PR is also B and this OP is A, so this is also A, right? This we can make it parallelogram also, and this is a triangle also. OPR is a triangle in which this PR is B only, and this R can be written as A plus B, no doubt. इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। And this resultant OR is making an angle theta with the A, and there is an angle between A and B, that angle is theta। दोनों में अंतर है, बस ध्यान रखना बच्चों। सो रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, हम मान रहे हैं, और जो A और B के बीच का एंगल है वो थीटा एंगल है। एंड डेफिनेटली ये एंगल अल्फा है और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है मान लीजिए, और ये पैरेलल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ओनली,
or not? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. Why? Can you tell me? If this angle is theta, then why this angle also should be theta? पैरेललोग्राम अभी भूल जाओ एक बार, पैरेललोग्राम बनाया नहीं मैंने. चलो ये मैंने लाइन बनाई हुई है और ये मेरा ये है, तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों होता है? Alternative interior angle. Is it alternative interior? Please see. These are two parallel Corresponding lines. angle. Yes, corresponding angles. So L and M. Suppose this L is parallel to M, and this is a transversal T. This is a transversal T. देखो अभी आ गए ना हम 8th और 9th के हमारी ज्योमेट्री में आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाते हैं, तो हमें ये सब करना पड़ता है बेटा. सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ही क्या होता है? कॉरस्पॉन्ड. यहाँ पर इस एंगल की जो जगह है वही इस एंगल की जगह है. यहाँ इस एंगल की जो जगह है, जो प्लेस है सिमेट्रिकली, वो ही यहाँ इस एंगल की जगह. तो दीज आर टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस इज द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस. कॉरस्पॉन्ड है ना, बिल्कुल उसी जगह पर ये बैठा. तो ये कभी नहीं भूलना है बच्चों आप लोग को, है ना. भूल जाते हैं क्योंकि आप लोग मतलब नहीं समझते उसका कई बार. तो ये L और M अगर पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल T है तो हम इनको कॉरस्पॉन्ड. एंड इफ दिस लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. सो इफ दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. So same thing is here. So this is angle theta, so this will be angle theta because these two lines are parallel. And this is a transversal, this is a transversal. Understood? Clear? Yes, sir. मैथमेटिक्स समझ में आ गया इसका. तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनालिसिस, फिलोसॉफी ऑल विल गो टुगेदर बेटा. है अभी फिजिक्स में हमारा सब कुछ साथ साथ चलेगा. सो दिस वंडरफुल जर्नी वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना. चलिए. And definitely this is the obtuse angle and this alpha is there. So definitely जरूरी नहीं है कि अल्फा की जितना ही बीटा हो. अगर स्केलन ट्रायंगल है तो दिस एंगल विल बी डेफिनेटली डिफरेंट, तो इसको बीटा मान लीजिए, है ना. कंसिडर इट एज अ बीटा. ओके. Yes, sir. And now you make a small construction. जैसे आपने इसको मिलाया तो just put a perpendicular from here. R से एक perpendicular डाल दीजिए by extending this OP. You extend OP like this, and if you put a perpendicular from this R on this extended part, then suppose this is meeting at point D. मान लीजिए. You write also बेटा, please you write yourself also ना, because this figure is a self explanatory, but if you write तो आपको भूलेंगे नहीं आप. तो जब भी अभी आज ही इसको बना लीजिएगा, अगर अभी नहीं बना रहे हैं तो इसको जैसे ये पीपीटी आई विल शेयर विथ यू. सो आप सारी चीजें लिखना है ना. इफ ए इज द वन दिस एंगल व्हाट vector, B is a vector along this side, O A is the vector along OP, and this alpha theta, ये सब angle between this A and B is theta, angle between this resultant R and A is alpha, and this angle between this R and this B, this one B is beta, and this B और इसके बीच का एंगल A के बीच का एंगल, B और एक्सटेंडेड A के बीच का एंगल जो है वो भी थीटा होगा, बिकॉज दिस इज थीटा. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट, एंड बाय सिंबल ट्रिग्नोमेट्री यू कैन राइट दिस इज B sin theta. Can you write or not? Tell me. This is B hypotenuse, this is a PD, this is angle theta, so this is perpendicular, this is hypotenuse. So RD upon PR is equal to what? Sine of theta or not? Can we write or not? So this RD is equal to PR sine theta. Can we write like this? And this RD is nothing but this. So RD can be written as PR is equal to what? PR is nothing but B. So this B sine theta. Understood बच्चों? समझ में आ गई बात? So this RD is B sine theta, and this PD, what will be PD? PD के लिए क्या करेंगे बेटा? Which ratio we will take?
in the right triangle PRD, this PD is the base and this is the hypotenuse. So we know that PD, that is what, base upon hypotenuse जो आप लिखते हैं. So base upon hypotenuse PR is equal to nothing but cos theta. So we can write PD is equal to PR cos theta. So this is PD is nothing but equal to this PR is nothing but magnitude of PR is B. So this is B cos theta. So understood how this came? दोनों कैसे आ गए, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? हाँ सर. ओके, मैंने, आप अलग से लिख लीजिए इसको बच्चों. ये मनीष सर ने डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज बच्चे अभी इतने मैच्योर हो जाते हैं 10th क्लास में कि अब वो समझ जाते हैं, है ना, तो इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग. वी हैव टेकन दैट लिबर्टी टू राइट डायरेक्टली, है ना, बट सम ऑफ यू इफ यू आर हैविंग सम डाउट यू कैन जस्ट एलॉबरेट इट एंड राइट प्रॉपरली बच्चों, है ना. चलिए, तो यहाँ पर ये हम लोग, अब हम, ये हमारे पास B, ये RD आ चुका है, OD आ चुका है. So can we, this is the right angle or not? This is the right angle. So if I take an triangle ODR, because I want to find out this R in terms of A and B. तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, मुझे एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. सो आई हैव मेड दिस राइट ट्रायंगल ODR, और उस ODR बनाने के लिए ही तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था. So I have put this perpendicular just to make it a right angle triangle so that I can find out the relation between this R, A and B very nicely. Okay, so magnitude of A, R मैं निकाल पाऊँ, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक किया कि मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया. Because if I make any figure in the form of right triangle, मेरे लिए बहुत easy हो जाता है, because मेरे लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है उसमें, और पाइथागोरस थ्योरम से मैं easily उन चीजों को कर पाता हूँ. So this is a trick. तो कई बार पूछते हैं सर, बच्चे पूछते हैं, अरे क्यों हमें परपेंडिकुलर लगाना है, हमें पता ही नहीं चलता है. तो आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर हम गिरा रहे हैं मींस वी आर कन्वर्टिंग दैट ट्रायंगल इनटू अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. So to convert that right triangle into a right triangle so that we can easily find out the relation between the angles and sides very easily. तो ट्रिग्नोमेट्री कब लगेगी हमारी, जब राइट ट्रायंगल होगा. तो राइट ट्रायंगल हमारा बनाने का पर्पस ही ये होता है कि हम सिंप्लीफाई कर पाए, हम रिलेशंस निकाल पाए एंगल्स और साइड्स के बीच में. अंडरस्टूड बेटा? तो कभी भी कंस्ट्रक्शन हम राइट ट्रायंगल की इसलिए करते हैं. तो ये हो गया, OR स्क्वायर हो गया हमारा. OR स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर. सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. OD कितना हो रहा है, देखो OD इज अ सम ऑफ OP एंड PD. OP क्या लेंगे हम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है. सो वी हैव टेकन ओनली मैग्नीट्यूड A, एंड B cos थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एंड देन B sin थीटा होल स्क्वायर. सो ओपन दिस ब्रैकेट, A plus B होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए. सो दिस विल बी लाइक दिस. सो नाउ वी कैन राइट दिस वे, B cos square theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta को फिर से एक साथ ले लीजिए. So you can write the same thing they have written. So if you take it out, what will happen? मैं बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं, इसको बताइए. निकाल सकते हैं. So sin square theta plus cos square theta बन जाएगा, है ना. इसको मैंने बाहर निकाल लिया, B को कॉमन लेके B square, है ना. So cos square theta plus sin square theta अंदर बच जाएगा, that will become 1. तो ये हमारा 1 हो गया. तो अल्टीमेटली आई विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आ जाएगा, है ना. ये देखिए, एंड दिस वी विल राइट दिस वे. आई थिंक दिस मच इज वेरी वेरी कॉमन टू यू, आप सभी बच्चे कर लेंगे इतना. तो ये हमारा जो रिजल्ट निकला, ये बहुत बहुत स्पेशल है हमारा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वी हैव रीच्ड. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट in terms of the magnitudes of the A and B, we have calculated A square plus B square plus 2AB cos theta, and this can give you wonderful results. इसके resultant, अब that means this A and B is constant. So R depends on which factor? This factor cos theta, means theta जितना चेंज होगा वैसे ही हमारा R भी चेंज होता जाएगा. तो बताइए अलग अलग कंडीशंस आप खुद लगा लीजिए. थीटा अगर 0 हो गया, बताइए थीटा 0 हो गया, क्या हो गया, नीचे ले आइए, एक ही डायरेक्शन में भी आ गया, व्हाट विल हैपन, चलिए बोलिए. थीटा 0, so R square will be equal to A square plus B square plus 2AB
cos 0 कितना होता है? What is cos 0 degree? √3/2. Please, Uh, cos 0 degree. Anyone? cos 0 degree. चलो थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ हमारा साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, बिकॉज आई थिंक आई विल हैव टू जस्ट गो रिवर्स गियर लगाना है बेटा। साइन का हमने साइन वेव देखा, ऐसा जाता है ये साइन वेव, राइट? साइन, तो साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है। साइन की वैल्यू 0 से 90 तक क्या होगी? इंक्रीज होगी 90 डिग्री तक। ये 90 डिग्री हो गया, राइट? सो 0 टू 90 डिग्री ये साइन थीटा, राइट? साइन की वैल्यू 0 टू 90 डिग्री इंक्रीज होती है, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, देन साइन 60 √3/2, दैट इज √3/2 मतलब 0.8 समथिंग, 1/√2 मींस 0.7 समथिंग, उसके पहले 0.5। सो ये इस तरह से होती हुई 1 तक पहुंचती है। तो साइन थीटा वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 1 तक जाती है ये, है ना? 90 डिग्री पे 1 हो जाती है वैल्यू। सो 0 से 1 तक इंक्रीज होती है जब एंगल 0 टू 90 डिग्री इंक्रीज होता है। जस्ट अपोजिट टू दिस, कॉस थीटा 0 से शुरू होता है, cos 0 is 1 एंड cos 90 is 0। यहां तक तो मुझे लगता है 10th में आपने पढ़ा है। इसके आगे का अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना तो आपको आना चाहिए बेटा। तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वेव के फॉर्म में चाहे तो याद रख लीजिए, ये इस तरह से जाता है। कॉस की वेव ऐसे चलेगी, हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 0 डिग्री जो होगा, 0 डिग्री जो होगा वो होगा 1 पर होगा 0 डिग्री, और ये जब 90 डिग्री आएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो एट 90 डिग्री इट विल बिकम 0। 90 डिग्री पर ये cos थीटा 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? इतना याद रहेगा अभी? कैन यू डू दिस? और सेम वे में आएगा, सेम वे में आएगा, है ना? 1 then √3/2, then 1/√2, then 1/2 and then 0। so this much at least अभी आपको आना चाहिए, at least this is a prerequisite, है ना? इसलिए मैंने बोला 10th तक का मैथ्स फिजिक्स थॉरो होना है। चलो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा हो सकता है धूल जम गई है, उसको निकाल दीजिएगा। चलिए, ओके, सो शैल वी कंटिन्यू विद दिस? हाँ, अभी चलो, मैंने ये कंडीशंस लेना शुरू कर दिया था। तो अगर cos थीटा क्या हो गया? 0 हो गया, दैट मींस सॉरी, cos थीटा 0 नहीं है, एंगल 0 है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट? तो क्या होगा बेटा? ये 1 हो जाएगा एंड आवर रिजल्टेंट विल बी बच्चों, रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मैं नॉर्मल वे में ऐड कर सकता हूँ इनको। एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में, तो वन डायमेंशन में a अगर 3 है और b 4 है, तो डायरेक्टली आई कैन ऐड देम, जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं 3 + 4, वैसे ऐड कर सकते हैं इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही वो 2 डायमेंशन में आ गए तो वी कैन नॉट ऐड, बिकॉज वहां पर cos थीटा का जो ये जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये उस हिसाब से चेंज होते चले जाएंगे। चलिए, cos 90 बता दीजिए कितना होगा? cos 90 हो जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो वहां पर रिजल्टेंट सबसे कम होगा, रिजल्टेंट सबसे क्या हो जाएगा? वहां पर कम होगा। सबसे कम तो नहीं होगा, अभी सबसे कम तो और आगे आने वाला है, लेकिन 0 होने से ये जो फैक्टर है वो गायब हो जाएगा। सो सबसे कम तो अभी नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ पेन, ये पेन यहाँ पर है। सो r square will be equal to a square plus b square हो जाएगा if theta is equal to 90 degree, because this factor cos 90 is 0, तो ये जो थर्ड टर्म है वो गायब हो जाएगी। so this will be a square plus b square, exactly आ जाएगा r square is equal to, or we can say r is equal to root over a square plus b square। बट अभी हम और आगे जाएंगे, अब स्टडी करेंगे 90 डिग्री से भी आगे जाएंगे 180 पर, और 180 पर आएंगे तो हम देखेंगे कि वो 0 भी हो जाएगा कभी कभी, है ना, और कम होता चला जाएगा, क्योंकि a और a को b क्या करेगा? अभी इस तरफ आ गया तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा,
और डेफिनेटली उनका रिजल्टेंट कम होगा। टग ऑफ वॉर हम लोग आप जानते हो ना, उस टाइप से वो होगा, है ना। और यहाँ पर भी वो टग ऑफ वॉर ही हो रहा है। मान लो ए इस तरफ खींच रहा है और बी इस तरफ खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बताओ, सिंपल है ना। एक चीज है, मान लो एक कोई एक कुछ कुछ टॉय रखा हुआ है, उसको एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है और एक बच्चा बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, उसके थोड़ा सा इस एंगल से खींच रहा है परपेंडिकुलर से, तो वो टॉय जाएगा कहाँ, इधर जाएगा या इधर जाएगा बताइए। इन विच डायरेक्शन दैट टॉय विल गो? इफ वन इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड, है ना, तो फ्रॉम वेयर दैट टॉय विल गो, है ना। ये मान लीजिए टॉय कार है, ये रस्सी लगाए रखी है ना, ये एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, बताइए कहाँ जाएगा टॉय? ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली टॉय विल नाइदर गो दिस साइड और नॉट दिस साइड, बट इट विल गो लाइक दिस, है ना। रिजल्टेंट वहां से निकलेगा ये। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी है, हम लोग ये फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें या हम ए और बी वेक्टर के फॉर्म में देखें, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर। अंडरस्टूड बेटा? हेलो यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। चलो। तो इन जनरल तो यही है बेटा, है ना। अब अलग अलग एंगल होंगे तो अलग अलग सिचुएशंस आएगी, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो अलग अलग सिचुएशंस आप समझ सकते हैं अलग अलग कंडीशंस लेकर के। तो इन जनरल ये, और इसको बोला जाता है बच्चों लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या बोला जाता है? बिकॉज ये कोसाइन आया ना, कोसाइन मतलब क्या, कॉस, है ना। कोसाइन वो कोसेक नहीं है, कोसाइन इज डिफरेंट देन कोसेक। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन बोला जाता है बिकॉज द रिजल्टेंट वी हैव शोन इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइंस। ऐसे ही लॉ ऑफ साइंस भी होता है। और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर हम लोग किससे दे सकते हैं बच्चों? ये टेन अल्फा। टेन अल्फा हमको क्या देगा बच्चों? डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए? विथ रिस्पेक्ट टू ए आर का डायरेक्शन क्या है बताओ, कैसे आएगा? टेन थीटा हम निकाल लेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू? बोलो व्हाट इज टेन? आर डी बाय ओ डी। हाँ, टेन अल्फा, यहाँ टेन थीटा नहीं टेन अल्फा लेंगे। सो व्हाट इज टेन अल्फा? आर डी अपॉन ओ डी। OD, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो रख दीजिए, देखो, है ना। तो ये ऐसा रख दिया B sin थीटा। सो दिस RD इज B sin थीटा एंड दिस OD as you know A plus B cos theta. So we can show the direction also as well as magnitude also with the help of this simple calculation, है ना। तो ये दोनों milestones हैं, ये दोनों याद रखने हैं आपको, है ना। and this is called as law of cosines। ऐसे ही लॉ ऑफ साइंस भी आता है, लेकिन वो कोई आपको अभी डिराइव करना नहीं है, बट ये याद रखिए कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाता है, तो जस्ट यू रिमेंबर इट। किस तरह से रिमेंबर करना ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, और कभी बाद में हमको मौका मिलेगा तो आई विल डिराइव इट ऑल्सो। बट दिस आर अभी याद रख लीजिए, देखो ये आर इज अ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के अपॉन में क्या आया? साइन थीटा। दिस साइन थीटा, दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ए और बी के बीच में जो एंगल है उसमें से ये निकल रहा है आर, तो ये आर के नीचे आ गया साइन थीटा। ए के नीचे ये ए इज द एंगल, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए के अपोजिट में कौन सा है बेटा? बी एंगल। सो ए के नीचे आएगा साइन बीटा, और ये बी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है वैसे देखें तो? बी के अपोजिट आ रहा है अल्फा, है ना। यहाँ पर बी के अपोजिट में यहाँ पर वैसे नहीं आ रहा है ये, लेकिन हम लोग बी के अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। तो ए के अपोजिट तो बीटा आ रहा है, तो ये इसको याद रख लेना। तो अपने आप ही बी के नीचे में क्या आ जाएगा? साइन अल्फा, है ना। तो इस तरह से अभी याद रख लीजिए आप लोग। वी विल डिराइव इट on some say other session we will derive it, or some math students I am giving this task to do this and bring it to this by using these things, right? देखते हैं आप लोग लॉ ऑफ साइंस डिराइव कर पाते हो कि नहीं, है ना। then I will just explain that, okay? So r by sin theta is equal to a by sin beta is equal to b by sin alpha। so ये हमारा ये हो गया। तो इतना मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है, आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने पूरा बढ़िया से इसमें इन्वॉल्व रहे आप लोग। दो कहीं गलती हो जाए आपको बताने में, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू बेटा, है ना। गलती करके